چلو کربلا چلے، چلو کربلا چلے یارا، ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، کربو بلا کی سب کو زیارت نصیب ہو۔ نبی کا نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابوالقاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمن، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا إلى الله وقدمنا بين يديك حاجاتنا يا وجيها عند الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بمحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے باد سبا جا کے اموں کو بتانا، یاسین سکینہ ہے باد سبا جا کے اموں کو بتانا، یاسین سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ آئے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی باداس لئی انہوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ ہے باد سبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تلئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ ہے باد سبا جا کے اموں کو بتا
نسبت یہ قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی جو پھپھیاں تو گلا کھینچتا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں گونجی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ کر لوٹ کے جاتے ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھی ہے میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کٹ جائے بازو میرے مجبور تھا بی بی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھائی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا
ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ ہے باد صبا جا کے ہموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ محمد والی ایسا ظلم کری توڑتیر کری نے پجوا ما آئی واچ آج بھی آواز گونجی رہی چی حال من ناصرین ینصرنا فوکرون آواز پلین بیٹیس بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، ماتم کرو بیویوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلوات پر محمد۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور بيضان أراضيه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيد الشباب أهل الجنة بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमा कुल्लु ऐनिन बाकिया यौमल क़यामा इल्ला ऐनुन बक्कत अलल हुसैन मुस्तबशिरतुन व रहमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बहरहाल कुछ देर आपकी खिदमत में कुछ राय से अर्ज करना है कि जैसा कि जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि या फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, कुल्लु ऐनिन बाकिया यौमल क़यामा, ए मेरी बेटी फातिमा, क़यामत के दिन हर आँख रोएगी, क़यामत के दिन हर आँख रोएगी, इल्ला ऐनुन बक्कत अलल हुसैन, हर आँख रोएगी मगर वो आँख उस दिन न रोएगी जो दुनिया में हुसैन पर रो चुकी है। मुस्तबशिरतुन व रहमा, बल्कि उनके लिए बशारत है, रहमत है, और उस दिन वो लोग खुशहाल होंगे। यानी इस हदीस से जो मफहूम लेना ये है हमको आपको कि जो भी आँख या जो भी अमल इमाम हुसैन के लिए किया जाएगा वो हमारे लिए कबूल है। यानी यहाँ पे सरीहन वाज़े तौर पर जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमा दिया, बिल्कुल वाज़े कि बेटी क़यामत में रोना ही रोना है हर आँख को। क़यामत के दिन हर आँख वहाँ पर क़यामत के दिन रोएगी ही, लेकिन एक आँख नहीं रोएगी। वो कौन सी आँख है? जो हुसैन पे रोती है। और जैसा कि आपके सामने हदीस है कि हमारे और आपके छठे आका ने जो इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी मेरे जद हुसैन पर गिरिया करे या गिरिया करने वाले की सूरत बनाए या रुलाए या रोए, वजबत लहुल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इंसान को खुश नहीं हो जाना चाहिए, यही पर बस खुश हो जाए कि हमारे ऊपर हम मौला हुसैन पर रो लिए और हम पर जन्नत वाजिब हो गई, बस नहीं। हदीस का बहुत बड़ा मफहूम है। थोड़ा सा जो हदीसें होया कि उन पर फिक्र किया गया, फौरन ही बहुत जल्दी खुश ना हो जाया करें कि यहाँ पर तो मासूम ने कह दिया कि हर वो आँख, रसूल खुदा ने कहा हर वो आँख रोएगी क़यामत में जो दुनिया में नहीं रोई है हुसैन पर। छठे इमाम फरमा रहे हैं कि वो आँख जो दुनिया में रोई है या वो शख्स कि जो दुनिया में रोया है या रोने वाले को उसने सूरत बनाई है, जिस तरह से भी कोई अमल अंजाम दिया है वो बख्शा हुआ है, वो शख्स बहिश में जाएगा, जन्नत उस पर वाजिब है। ठीक, कौल मासूम माज़अल्लाह झूठा नहीं हो सकता। और जैसा कि इसी हदीस की रोशनी में और आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, शहजादी फरमाती हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा कि शहजादी कौनैन ने फरमाया और वादा किया किसके सामने, गवाह कौन है, शाहिद कौन है, 3 मासूम, जनाब रसूल खुदा, मौला अमीरुल मोमिनीन, इमाम हसन और असहाब, 3 शाहिद मौजूद हैं। शहादत देने वाले 3 शाहिद मासूम मौजूद हैं कि जिनके सामने मलके आलम शहजादी कौनैन वादा कर रही है, ए मेरे बाबा जो मेरे बेटे हुसैन पर रोएगा, बाबा मैं वादा करती हूँ कि बहिश्त में उस वक्त तक न जाऊंगी जब तक कि मेरे बेटे हुसैन पर रोने वाला चला ना जाए।
बहुत बड़ा मफहूम है। मत इंतजार करवाइएगा शहजादी को मत इंतजार करवाना। वादा किया है ज़हरा ने कि मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगी बाबा जब तक कि अपने बेटे हुसैन पर हर रोने वाले को लेकर न चली जाऊं। आया ज़हरा के मानने वाले, आया हुसैन के मानने वाले, आया शहजादी कौनैन के मानने वाले, आया मौला अमीर अल-मोमिनीन के मानने वाले और गुनहगार और हमारे जैसे गुनाह। देखें, बरज़ख एक ऐसी चीज है कि जिसको परवरदिगार ने रखा है। शहजादी का कौल सच्चा अपनी जगह, शहजादी का वादा सच्चा, रसूल की हदीस सच्ची, शहजादी महशर में मुंतजिर। हम यहाँ पे अब खुश हो जाते हैं कि अब तो हमें जन्नत जाना ही जाना है 100% जाना। जन्नत बनी ही आप ही लोगों के लिए, जन्नत बनी ही है आप ही लोगों के लिए। लेकिन शहजादी तक पहुंचना है। आया ऐसा न हो कि हमारे गुनाह मासूम तक पहुंचने से हमें रोक दे। इसलिए फिर कुरान की आयत आगे बढ़कर कहती है कि कोई भी नजासत, कोई भी पलीदगी अहले बैत के नजदीक नहीं आ सकती। चे नजासत ज़ाहिरा, चे नजासत बातिना। चे नजासत ज़ाहिरा जो आम नजासतें हैं, चे नजासत बातिना और खबीसा वो नजासत की भी दो किस्म है। एक वो नजासत जो हमारा जिस्म करता है कि वो नजासत सामने है। एक है नजासत बातिना कि जो रूह से सादिर होती है। मासूम नूर है, मासूम नूर है, वहां से जिस्म नहीं नजदीक हो रहा है। जिस्म हमारा फना हो चुका है, रूहें मौजूद हैं, रूहों को पहुंचना है मासूम तक। एक मिसाल से वाज़ेह कर दूं, शहजादी का वादा अपनी जगह सच्चा वादा है। माज़अल्लाह कौनैन की शहजादी झूठ नहीं बोलेगी और 3 मासूम के सामने वादा है। शहजादी ने वादा किया, हम खुश हो गए कि जन्नत में जाएंगे। लेकिन अजीजों, जन्नत में पहुंचने के मराहिल हैं। अब ये नहीं कि हमने जो किसी का माल हड़प कर लिया ज़हरा कहेंगे हम बख्शवाएंगे, किसी का दिल हमने दुखा दिया शहजादी कहेंगे हम इसे बख्शवाएंगे, किसी का माल गस्ब कर लिया शहजादी कहेंगी कि मैं बख्शवाऊंगा, किसी का दिल तोड़े बैठे हैं, 2 पड़ोसियों को लड़ाकर अलग कर दिया है, सिले रहम बजा नहीं लाए, वालिदैन के हुकूक को अदा नहीं किया, ज़न शौहर के हुकूक अदा नहीं किए गए। ये सारी चीजें अपनी जगह पर, और उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं हम जन्नत में जाएंगे, जाएंगे जन्नत में, जाएंगे जन्नत में, जाना है जन्नत में। आपने देखा है कि धोबी लोग को कभी कपड़ा धोते हुए, धोबी कपड़ा धोता है, या गन्ने की एक मशीन को देखा होगा, गन्ना जो उसमें जूस निकाला जाता है। धोबी जब कपड़ा धोता है तो इतना पटकता है, ना साबुन लगाता है ना शैम्पू लगाता है, वो पटक इतना पटकता है कि बिल्कुल साफ हो जाता है। बाज मौके होते अगर कमजोर कपड़े होते हैं तो तार हो जाते हैं। गन्ना निकालने वाली मशीन इतना गन्ने को घुमाएगा, इतना गन्ने को घुमाएगा कि आखिरी कतरे तक जो उसके अंदर रह गया वो निकाल दिया जाता है। अल्लाह ने हमारे लिए एक चीज बनाई, क्या है गन्ने की मशीन? वो कौन सी चीज है? फेशार काब्र, गन्ने की मशीन। फेशार काब्र कहना बड़ा आसान है, इन मजलिसों में सुन लेना बड़ा आसान है, और इस मिंबर से बैठ के पढ़ लेना बड़ा आसान है। जब जनाजा रखा जाता है ना इंसान का, रवायात मौजूद हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ वैसे ही जिंदा हो जाता है। कहेंगे मौलाना कब्र वाले बापू आ गए, क्या करें? जन्नतें तो बाट बहुत रहे, मैं समझा भी दूँ मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? कब्र हर तरफ से, ऊपर नीचे चारों तरफ से ये कब्र को जमा होना, और उसके बाद इसको पीसना। ये कब्र इंसान को, इंसान जिंदा जैसे ये बैठा है ना, इधर तलकीन पड़ी हुई जिसके अंदर आ गई,
वो इंसान जो दुनिया के नर्म और गर्म बिस्तर की आदत वाला इंसान, जिसको जरा सी लाइट चली जाए तो बर्दाश्त नहीं, वो इंसान कि जिसको न ज्यादा गर्मी बर्दाश्त न ज्यादा सर्दी बर्दाश्त, वो इंसान ये लिफ्ट सामने अंदर लिफ्ट के आप खड़े हैं, लाइट चली गई, घबरा जाता है इंसान, दिल धड़कने लगता है, मालूम है कि कोई यहां से अभी बाहर निकाल देगा, दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। वो तारीकी एक कब्र कि जिसके अंदर रवायात है कि मनो टनो जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी होगी, जहां से निकलने का कोई चारा ही नहीं, वहां पे इंसान, वो इंसान की जो इतनी सख्ती, यानी अगर ज्यादा तेज हवा चल गई तो भी बर्दाश्त नहीं, हवा न चली तो निकल लिए, वो इंसान जो इतना नाजुक बनाया गया है। अब ये इंसान जब इस कब्र के अंदर रखा गया, रास्ते में आ रहा था, जिस वक्त पैदल जब चल के आया हूँ, जब कल पहुंचा हूँ, तो तकरीबन 40 किलोमीटर जब करबला बचा था, बहुत प्यारी हदीस थी सातवें इमाम के वहां पर लिखी, बहुत प्यारी हदीस थी। मौला फरमाते हैं कि जो इंसान जायर होगा हुसैन का, जिसने मार्फत के साथ हुसैन की ज़ियारत की होगी, उसके कब्र में रोशनी बन जाएगी यही ज़ियारत। एक जगह से इंसान पाक हुआ, वक्त नहीं तो अर्ज करता कि फिशारे कब्र से कैसे बचोगे, बस जल्दी से एक फिक्र अर्ज करता। मौला अली फरमाते हैं, देखिए इस अमल को जरूर अंजाम देना, जो फिशारे कब्र से बचना चाहता है। अमल मैं बता देता हूँ, करना आपका काम है, करो ना करो आप जानो, बताना मेरा काम है। फिशारे कब्र से बचना चाहते हो, एक काम जरूर कर लिया करो। मौला फरमाते हैं, अगर तुम्हें गुस्ल जुमा करने के लिए, गुस्ल जुमा अगर करने के लिए सोना देकर पानी लेना पड़े जुमे के दिन, दे दो पानी ले लो, सोना दे दो पानी ले लो, गुस्ल कर लो। मौला फिर पूछा गया, मौला फिर गुस्ल करने का इसका फायदा क्या है? ताकि मौला कहते हैं कि पहले दिन बच जाएगा फिशारे कब्र से, लेकिन शर्त यह है कि गुस्ल जुमा तन्हा खाली महीने में एक मरतबा नहा लिया वाला नहीं हो, गुस्ल जुमा के पाबंद बन जाओ, आदी बन जाओ गुस्ल जुमा के लिए। गुस्ल जुमा के लिए दो चीजें हैं, एक तो फिशारे कब्र नहीं होगा, दूसरे अजाब में तखफीफ, गुनाह उसके कम हो जाते हैं। गुस्ल जुमा एक ऐसा, लेकिन मुस्तहब अमाल की कज़ा नहीं होती। दो अमाल है जिसकी कज़ा है और अदा से पहले अदा, यानी टाइम से पहले उसको अंजाम दिया जा सकता है। एक है नमाज शब, नमाज शब के लिए है कि नमाज शब वो नमाज है, मसलन आप उसका टाइम जो उसका मेन वक्त जो उसका है, अज़ान सुबह से तकरीबन 20-25 मिनट पहले जो उसका असर टाइम है, लेकिन आप उस वक्त नहीं पढ़ सकते, किसी वजह से नहीं पढ़ सके। नमाज मगरिब के बाद से लेकर चाहे जब पढ़ रहा, उसकी फजीलत का टाइम है वो अज़ान सुबह से पहले का है। नमाज मगरिब पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने वो जो है नमाज पढ़ ली, मगरिब के बाद नहीं तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब पढ़ सको। नहीं पढ़ सके, पूरी रात जगते रहे, बीवी टीवी के चक्कर में पूरी रात जगा इंसान, जब सुबह में उठा पता चला सुबह की भी नमाज चली गई और शब तो गई गई, वाजिब भी गई। अब क्या करें? अब सुबह उठने के बाद अपनी कज़ा नमाज भी पढ़ लो, नमाज शब को कज़ा की नियत से पढ़ लो, नमाज शब को कज़ा की नियत से पढ़ लो। सुबह में ना पढ़ सके, नाश्ते के बाद फिर पढ़ लो, 10 बजे सुबह, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दूसरी शब आने से पहले पढ़ लो। इतना छोड़े परवरदिगार, दूसरी शब आने से पहले पढ़ डालो इसको। इसके लिए तो ये भी है कि आप गाड़ी पर चल रहे हो, बाइक पे बैठे हुए हो, आप ट्रक चला रहे हो, बस चला रहे हो, कार चला रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, नियत करो अल्लाहु अकबर, किबले की भी शर्त नहीं, किबला उधर जाए इधर रहे आप, अल्लाहु अकबर, शुरू हो जाओ नमाज शब, शुरू हो जाओ नमाज शब पढ़ना शुरू कर दीजिए। मौला फरमाते हैं छठे आका कि अगर मेरे शीयों पर बार न होता, सख्त न होता, तो मैं नमाज शब को वाजिब करार दे देता, वाजिब करार दे देता। नमाज शब एक जिसकी कज़ा से पहले कज़ा भी है और अदा से पहले अदा, दूसरा है गुस्ल जुमा। खत्म किया मैंने अपनी बात को, गुस्ल जुमा, गुस्ल जुमा जिसकी फजीलत का बाप, यानी फिशार से बचना चाहते हो रास्ता बताता हूँ, फजीलत का बाप,
زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، زوال سے یعنی نماز ظہر اور عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو یہ اس کا فضیلت کا ٹائم ہے. لیکن آپ اس وقت نہیں کر سکے کسی وجہ سے، سفر میں آپ سفر میں ہیں، آج جمعہ تھا آپ سفر میں نکل گئے، غسل جمعہ نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں کر سکے. رات میں یاد آیا، رات میں پہنچ گیا، رات میں کر لو، رات میں بھی نہیں ہو سکا، اس کے بعد آپ اس کو صبح میں کر لو. صبح میں نہیں کر سکے، دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن، ہفتے کو شام میں کر لو، اتوار کے دن کر لو، پیر کے دن کر لو، منگل کے دن کر لو، بدھ کے دن کر لو، جمعرات کو کر لو، دوسرا جمعہ آنے سے پہلے کر لو. غسل جمعہ دوسرا جمعہ آنے سے پہلے قضا کی نیت سے کر لو. اگر پھر بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ میرا سفر میں ہے، جمعرات میری سفر میں، دونوں دن سفر میں ہے، آپ عادی ہو چکے ہو، آپ خود کو کر لو غسل جمعہ. کتنا چھوڑے خدا، کتنا چھوڑے، مگر کرو. اگر غسل جمعہ کا کوئی شخص عادی بن گیا ہے تو روایات ملتی ہیں کہ ایک تو فشار قبر سے بچ جائے گا، دوسرے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. بات میں نے چھوڑی، اس کو مکمل کر دوں. شہزادی کونین کا وعدہ، ایک جگہ سے آپ بچ گئے نا، شہزادی کونین کا وعدہ کہ میں اس وقت تک بہشت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ میرے حسین پر ہر گریہ کرنے والا پہنچنا ہے. شہزادی انتظار کر رہی، دیکھیں شہزادی انتظار کر رہی، لیکن شہزادی نے کہا جو مجھ تک پہنچ آئے گا میں اسے لے کر اس کے وہاں تک لے جاؤں گا. ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، دیکھیں پہنچنا شہزادی کا حکم ہے کہ مجھ تک جو آ جائے گا میں روز محشر بابا اس وقت تک انتظار کروں گی جب تک کہ میرے حسین پر ہر رونے والا پہنچ نہ جائے، اس وقت تک میں انتظار کروں گی. ہاں دنیا کا دستور، بہرحال ہمارے گناہ، ہماری چیزیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، اکثر ہوتا ہے ہم زیارات پہ بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی ہم معصوم کے پاس نہیں پہنچ پاتے. پہنچ گئے سرزمین کربلا، کسی وجہ سے بھی، کسی کی دعا، کوئی نیکی، یہاں پہنچ گئے لیکن پھر بھی ہمیں اندر حسین کے حرم میں انٹری نہیں مل رہی، اندر انٹر نہیں ہو پا رہا ہے. یہ سرزمین کربلا ہی پہ روک دیے گئے. کیوں؟ اس لیے یہاں تک تو ہم آ گئے لیکن کیا پتا وہ کون سا ہمارا گناہ ہے جو ہمارے سدباب بن گیا، جس نے ہمیں روک لیا. یہ پاکوں کی جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہ فرشتوں اور ملک کی جگہ ہے، یہ وہ حسین کا احسان ہے، یہ تو اس معصوم کا احسان ہے جو ہم جیسے نجس گنہگار اس وقت اس سرزمین پر نظر آ رہا ہے. یہ سرزمین بہت پاک ہے، بہت مقدس ہے. یہ تو کرم ہے اس آقا کا کہ جس نے ہم جیسوں کو اس جگہ پر بلایا ہے. احسان ہے اس مولا کا. کیوں چنے گئے ہو تم سب؟ کیوں نہیں تم، آپ کے محلے میں بہت سے لوگ تھے، کیوں آپ ہی کا انتخاب ہوا کہ تم چلے آؤ اربعین کے اوپر ہمارے پاس، تم چلی آؤ میرے پاس، تم چلے آؤ میرے پاس. کیوں آپ ہی چنے گئے؟ سوچا کرنا، کیوں آپ ہی چنے گئے؟ کیوں معصوم نے چنا؟ کون سا ایسا ہمارا عمل ہے جو اس معصوم کو بھا گیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس معصوم کو ہماری پسند آ گئی، جو اس معصوم نے ہمیں اس جگہ پر بلا دیا؟ عزیزو شہزادی انتظار کر رہی ہے. شہزادی نے کہا جو بھی میرے پاس آ جائے گا میں اسے بخشوا لوں گی. ایک مثال سے میں واضح کر دوں، شہزادی کا وعدہ یاد رکھیے گا. مثلا میں سبط محمد آپ کے سامنے کسی بہت بڑی پوسٹ کے اوپر میں ہو گیا، سب جان پہچان والے دوست یار کسی محفل میں، یہ ہے کہ اتنی بڑی میری پوسٹ ہو گئی کہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں. اگر مجھ سے ملنا چاہے ٹائم لینا پڑتا ہے، اس کے بعد کوئی شخص مجھ سے آ کر ملے، مثلا پرائم منسٹر کوئی، اگر اس سے ملنا چاہے تو ملنے کے لیے وقت لینا پڑے گا، ٹائم لینا پڑے گا، تب اس کے پاس کہیں جا کر جو بیچ کے مراحل ہے تب پہنچنا. بہرحال کسی جگہ مجلس تھی، کسی جگہ کوئی پروگرام تھا، میں بھی آ گیا، سارے میرے باڈی گارڈ ان کے باہر ہو گیا، میں آ گیا اس جگہ پر آپ کے ساتھ آیا، آپ سب سے ملاقات ہوئی، کھانا پینا، اس کے بعد بیٹھے تو کچھ لوگ جان پہچان والے تھے، آگے گیا کہ مولانا صاحب ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ جگہ عنایت کی ہے تو کم سے کم اس جگہ سے آپ کچھ فائدہ اٹھائیے، اپنے کچھ جوانوں کو کام پہ لگا دیجئے، کچھ لوگ کو اچھی نوکریوں پہ لگا دیجئے. ٹھیک، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جگہ دی ہے، میں انشاءاللہ آپ کل میرے آفس، پرسوں میرے آفس آ جائیے،
कि वहाँ का बैरल कानून है, इंशाल्लाह आप वहाँ आ जाइए, मुझसे आकर मिल जाइए इंशाल्लाह आप, मैं अपने बच्चों को, इन लोगों को इंशाल्लाह कोई अच्छी जगह पे अच्छी नौकरियों पर मैं लगवा दूँगा। ठीक, वक्त सब खुश हो गए। मौलाना साहब ने हमारे दरमियान वादा किया है, सब खुश कि मौलाना कल जाएंगे मौलाना साहब के पास। जाने के बाद ये है कि वहाँ जब पहुँचेंगे मौलाना साहब अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरियों पर लगा दिए जाएंगे। मैं अपने ऑफिस में बहरहाल मैं अपने दस्तूर के मुताबिक अपने काम पर पहुँच गया। बहरहाल दूसरे दिन आपसे कुछ लोग वहाँ जो थे जिनसे वादे हुए थे वो लोग पहुँचे मेरे ऑफिस, और जब ऑफिस पहुँचे तो सबसे पहले चपरासी ने वहीं रोक लिया, कहा अरे मौलाना साहब से मिलने जा रहे हैं। मौलाना साहब से आपकी क्या निस्बत? मौलाना साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहल्ले के हैं। बड़ा बेचारा चपरासी था, उसने कहा अरे मौलाना साहब के दोस्त लोग आए, अच्छा जाइए अंदर। अंदर आ गए, दरवाजे से घुस गए अंदर। अब अंदर पहुंचने के बाद जब अंदर पहुंचे तो आप पहुंचने के बाद 2-3 जगहें थी जो वहां से होने के बाद मुस्तकाना था। अब उसके बाद वाली दूसरी जो एक सिक्योरिटी थी, सिस्ताई साहब के आप लोग गए होंगे, देखा होगा किस तरह से वहां पहुंचा जाता है। वो एक दरवाजा वहां लगा हुआ है, पहला दरवाजा, सबसे बड़ा पुलिस रात रही है कि वहां से अगर अंदर आप आ गए पुलिस रात के, अगर वहां से एंट्री हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे मराहिल है फिर पहुंचना है। बहरहाल ये है कि वहां गेट से तो आप अंदर आ गए, हमारी पहचान की वजह से, दोस्ती की वजह से अंदर तक पहुंचे। अब उसके बाद ये हो कि उसने रोका, दूसरे ने कहा मौलाना साहब से मिलने जा रहे हैं। कौन है आप? मौलाना साहब हमारे मौलाना हैं, हमारे दरमियान आते हैं, दोस्त हैं, किस्म का रिश्तेदार है। उसने कहा अच्छा मौलाना साहब के आप रिश्तेदार, आइए। वो भी मरहला हल हो गया, 2 मरहले गुजर गए। मरहला आया तीसरा, यहाँ से थोड़ा सा सख्ती होने लगी। अब यहाँ पर उसने रोका, कहाँ जा रहे हैं? चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ, मशीन में गुजारे गए। कहाँ जाना है? कहा मौलाना साहब के पास मिलने जाना है। उसने कहा मौलाना साहब से तो आप ऐसे नहीं मिल सकते। क्यों? अरे मौलाना साहब हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं। बहरहाल उसको भी किसी तरह पटा लिया, किसी तरह कह सुन के बहुत मुसीबत से कुछ घंटे खड़े होकर किसी तरह वहां से भी आप गुजर गए। अब एक बचा आखिरी मरहला कि जहां मेरे बॉडीगार्ड हैं, कि जहां के लिए है कि जिसको मैंने कह रखा अगर मेरा बाप भी आ जाए तो बगैर मेरी इजाजत के, या तो कोई उनके पास लाइटर मेरा नामा खत लिखा हुआ हो, या उनको इजाजत मैंने दे रखी हो, उसके बाद उनको आगे आने दिया जाए, वरना बगैर इजाजत के अंदर नहीं आने दिया जा सकता। कोई भी रिश्तेदार कह के ऐसे चला आएगा। वो लोगों ने वही बिठा दिया, लाख इल्तिजा करते रहे। मौलाना साहब रोज हमारे पीछे आते हैं, हम पीछे मौलाना की नमाज पढ़ते होगे, तुम पढ़ो और मौलाना जाने। अरे हम मौलाना हमारे घर के हैं, तुम्हारे घर के हैं, लेकिन मेरे घर के तो नहीं है। मौलाना साहब से बहुत अच्छी पहचान है, तुम्हारी पहचान है, मेरी तो नहीं है। तुम जानो मौलाना जाने, कुछ लिखा हुआ है उनका तुम्हारे पास? तो लिखा हुआ तो नहीं है। अरे मौलाना साहब ने वादा किया था, कल रात मिले थे, मौलाना ने वादा किया था मेरे ऑफिस आ जाना, मेरा ऑफिस पहुंच जाना, ये काम है। क्या पहले ये बताओ तुम इतनी दूर तक आए कैसे? तुम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे कि यहाँ तक बगैर लिखा हुआ, बगैर कुछ लिए हुए यहाँ तुम पहुंच कैसे गए? आ गए हो, वापस जाओ यहाँ से। मौलाना साहब से आपका एहतराम मेरी सराखों पे, आपका रुतबा मेरी आंखों पे। मौलाना के रिश्तेदार हो, चाय वगैरह भी पी लो, मौलाना के दोस्त हो, लाओ उनको ठंडा पानी भी पिला दो, लेकिन मौलाना से लिखा लाओ, मौलाना से कहला देना कि हम लोग को मौलाना कह दे, छोड़ देंगे आपको। बहरहाल कुछ देर बैठे रहे, लाख इल्तिजा, गुस्से में तिलमिलाते रहे। उसके बाद ये हुआ किसी तरह से वहां से वापस चले आए। वापस आए और आने के बाद इत्तेफाक से फिर आपने कल यही प्रोग्राम रख दिया। मैं ऊपर था, आया और आने के बाद मजलिस शुरू, और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वो लोग जिनसे मैंने की वादा किया था वो आकर मुझ पर गरम हो गए। क्या मौलाना साहब आप कैसा वादा करते हैं? मौलवी हो के आप ऐसा काम करते हैं? आपने कहा था कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, आपने कहा था मैं कारोबार दिलाऊंगा, आपने कुछ नहीं दिलाया, आपने अंदर तक आने की इजाजत नहीं दी। मैंने कहा देखिए मैंने आपसे वादा किया था, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, लेकिन मेरे भाई मेरा वादा ये यहाँ का है, वो कुछ गवर्नमेंटी कानून है, वहाँ के कानून के मुताबिक आए होते, तुम मुझ तक पहुँच आते तो मैं तुम्हें लेकर अपने पास आता। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें
नौकरी भी दिलाता, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर भी ले जाता। शहजादी कौनैन का वादा है। शहजादी ने कहा कि महशर तक, रोज़े महशर में इंतजार करती रहूंगी जब तक है हुसैन पर रोने वाला उस जगह तक ना आ जाए। ए बाबा, मैं बहिश्त के अंदर न जाऊंगी। शहजादी तक पहुंचना, कुरान की आयत, अहले बैत के नजदीक न नजासते जाहिरा जा सकती है, न नजासते बातिना जा सकती है। नजासते बातिना क्या है? गीबत, तोहमत, चुगली, बुहतान, ये सारी चीजें जो रूह अंजाम देती है, ये भी नजिस है। हमारा आंसू निकला हमारे जिस्म से, हमने अगर ग़ज़ाए हराम खाई थी, ये जो हिद्दत बढ़ी, ये जो शिद्दत बढ़ी, ये जो खून में रवानी बढ़ी, ये खून के बलबले बने और बनने के बाद आंखों से बहना शुरू हुए। हमने माल चुराया, दूसरे का दिल दुखाया, वालिदैन का एहतराम नहीं किया, हमने हुकूक अदा न किया, न सिले रहम अंजाम दिया। अब सबसे पहली शर्त यह है कि हमारा आंसू ज़हरा के रुमाल में तो पहुंच जाए। पहले हमारा आंसू ज़हरा के रुमाल में तो पहुंच जाए। शहजादी हमारा अश्क लिए बैठी है, इंतजार कर रही है। अल्लाह ने बरज़ख बनाई है, अल्लाह ने बरज़ख बनाई है। ये जो आमाल हमने दुनिया में अंजाम दिए, खुदावंद आलम कहता है अगर तेरी दुनिया का खत्म होने में 1 सेकंड बाकी होगा, मैं उस 1 सेकंड टाइम को तेरी दुनिया के 1000 सालों के बराबर कर दूंगा कि आलम बरज़ख में तू पाक हो तब वहां पहुंची। जब पाक होकर इंसान इस बरज़ख से निकलकर जब महशर में शहजादी तक पहुंचा, शहजादी कौनैन ने कहा, आ मेरे हुसैन पे गिरिया करने वाले, ये तेरा मकाम है, ये तेरा मकाम है, ये तेरा मकाम है। लेकिन क्या हुसैन का मानने वाला हरामकारी? नहीं। क्या हुसैन का मानने वाला किसी का दिल दुखाना? नहीं। क्या हुसैन का मानने वाला अपने वालिदैन से बेहतरामी करना? नहीं। क्या हुसैन का मानने वाला सिले अरहम को छोड़ देना? नहीं। शहजादी ने कहा, मैं वादा करती हूँ, रसूल ने कहा, हर आंख रोएगी, हर आंख रोएगी, लेकिन वो आंख उस दिन न रोएगी जो हुसैन पर रोकर आएगी। ये बशारत है और सनद है हमारे लिए जन्नत में जाने की। ये बशारत है और सनद है हमारे लिए जन्नत में जाने की। कुल्लु ऐनिन बाकिया यौमल क़यामा, हर आंख रोएगी, लेकिन वो आंख न रोएगी जो हुसैन पर रो चुकी है। हम आ गए सरजमीन करबला पे 40 मनाने के लिए। कितने लोग इस जगह पर बस पे चल के आए, कितने लोग इस जगह पर पैदल चल के आए, कितने रास्तों में आपने देखा लोग व्हीलचेयर पे चले आ रहे हैं। रास्ते में एक जगह और देखा कि एक ऐसा भी शख्स बैसाखी लिए चला रहा था जिसका एक पैर ही नहीं था। एक और शख्स देखा जिसके दोनों पैर माजूर थे और अपने हाथ से चलाता हुआ चला रहा था। बल्कि कुछ लोगों ने रहम खाकर कहा कि लाओ हम धक्का देकर इसको ले जाए। कहते हैं नहीं, हुसैन के पास मुझे जाना है ये पैर लेने के लिए। मैं हुसैन के पास जा रहा हूँ ये पैर लेने के लिए। क्यों छीन रहे हो मेरा पैर? कभी तवज्जो की है आपने इस सफर में, जो इस सफर पे आए हैं? बड़ी आसानी से हम पहुंच आए, जगह जगह पे खाने का इंतजाम। भूख लगी तो पकड़ पकड़ कर खिलाया, प्यास लग रही थी तो पकड़ पकड़ के हमें पिलाया जा रहा था। थक गए तो लोग बैठा कर पैर दबा रहे, हाथ दबा रहे। जरा सोचे उस काफिले को जो जिस तरफ से रवाना था, जो कूफे की तरफ जा रहा था, वो इतनी जल्दी नहीं पहुंचा। हम लोग तो 3 दिन में चले आए। मिलता है कि हफ्ते लग गए पहुंचने के कूफा। जहां जहां पर बच्चे थक जाते थे, बच्चे नहीं चलते थे, उन्हें प्यार नहीं किया जाता था, दरवाजे में उन्हें दुर्रे लगाए जाते थे। एक अजीब रवायत है, एक अजीब रवायत है। मिलता है जिस वक्त आप जब बीमार इस सफर में थे, आपने देखा होगा कि रास्ते में अमारियां जा रही थी और आप जब बीमार को बिठाया गया था। रवायत का फिक्र मिलता है जैसा कि मक्तल का जुमला मिलता है हमारे और आपके चौथे इमाम
इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस वक्त ये काफिला पहुंचा है कूफे तक, रवायत का जुमला है, कपड़ा साहब ने कपट चुका था, सीने की हड्डी नजर आ रही थी। लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ? मेरा मौला इरशाद फरमाता है ज़ाफ और कमजोरी की वजह से मैं जगह जगह पर ऊंट की पुष्ट से जमीन पर गिर जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जगह जगह पर ऊंट की पुष्ट से जमीन पर गिर जाता था। ये लोगों ने फिर मुझे न उठाया, बल्कि ऊंट का कोहान वो बुलंदी मिलता है। मौला फरमाते हैं मुझको लेटा कर, मुझको लेटा कर मेरे हाथों को ऊंट के पेट से बांध दिया गया कि ऊंट जैसे जैसे चलता था मेरा सीना छिल छिल गया। कहते एक जगह पे जब ये काफिला पहुंचा, काफिले को रोक दिया गया, मुझे नीचे उतारा गया। सिमरे मलऊन आगे बढ़ता है, हाथ में अपने सल्लाम लिए हुए, अपने हाथ में ताजियाना लिए मेरे नजदीक बढ़ा। मैं घबरा गया, करबला से बहुत सल्लाम मैंने खाए थे। कहता ये लड़ीन आगे बढ़ा, मैंने पूछा ए सिमर अब क्यों मारता है, अब क्यों मारता है? कहता है सिमर ये बता कि तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? एक मर्तबा कहते सब्र कर सिमर मत मार, पुष्ट भी जख्मी हो गई, सीना भी जख्मी है। ए सिमर सब्र कर। मिलता है आबिद बीमार बाबा के सामने आए, हाथों को जोड़ कर खड़े हो गए। ए बाबा, ए बाबा, अब कोड़े खाने की ताकत नहीं। बाबा आपका सर क्यों नहीं बढ़ता? सर हुसैन से आवाज आई, आंखों से हुसैन की अश्क जारी। ए मेरे लाल आबिद बीमार, अरे मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? मेरे सीने पे सोने वाली, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना ए आबिद बीमार रास्ते में गिर गई है। एक मर्तबा रवायत का फिक्रा है, खत्म किया मैंने, मांग ले अपनी दुआओं को जो मांगना है, मांग ले हाजतों को, दुआ करें कि जब तक जिंदा है हर रबीन करबला ना नसीब हो, दुआ करें ऐसे ही। मिलता है रवायत में बीबी ज़ैनब कहती है, बीबी उम्मे कुलसूम कहती है सब्र कर मेरे लाल आबिद, मैं सकीना को ढूंढ कर आती हूँ। अरे बीबी सकीना को ढूंढने के लिए जनाब ज़ैनब कुलसूम निकली, आवाज देती जाती है ए मेरी लाल सकीना का हो, ए मेरी लाल सकीना का हो। काफी दूर तक गई, रास्ता तारीक था, अंधेरा हो चुका था। अली की बेटियां जा रही हैं, आवाज देती जा रही, क्या देखा? यही रास्ते हैं, यही रास्ते हैं। एक जगह पर एक बीबी बैठी है, उसकी गोद में सकीना आराम कर रही है। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, बीबी कुलसूम आगे बढ़ी। ए बीबी आपका शुक्रिया, ए बीबी आपका शुक्रिया। अरे ये करबला से अब तक ऐसे न सोई थी, अरे वहां से दुर्रे खाती आई, तमाचे खाती आई। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने इस बच्ची पे रहम खाया। अरे सकीना को बड़ी गर्म गोद मिली थी, सकीना इतनी थकी थी कि कुछ मालूम न था। रवायत के
पालने वाले तुझे वक्त देते हैं 4 नमाज नींद का। महबूद हमारे इस तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल कर रहे हैं। परवरदिगार हम सबको बार बार इन बारगाहों में आना नसीब कर। ये मेरे परवरदिगार है, मेरे पालने वाले, एक इल्तिजा है, 12 दुआ की है। पालने वाले 3.5 साल बीत गया है, शाम को बंद हुए कलेजा बढ़ता है। ये वो दिन चल रहे हैं 40 के कि लोग पुरसा देने जाते थे बहन की खिदमत में भाई का पुरसा। आज 3.5 साल से ऊपर हो गए, बीबी ज़ैनब का हरम बंद है, एक भी ज़ाहिर वहां नहीं। बीबी सकीना के हरम में एक भी ज़ाहिर नहीं। अजब नहीं कि अब भी सकीना की कब्र से आवाज आ रही हो, ए मेरे चाहने वालों, सकीना की तरह ए पालने वाले, जिस तरह से हम लोग इस जगह पर बैठे पुरसा दे रहे हैं, हम सबको जल्द अज जल्द शाम में बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना के हरम में हाजिरी की तौफीक दे दे। परवरदिगार हमारे जमाने के इमाम का ज़हूर कर दे। माबूद, ए मेरे माबूद, तुझसे इल्तिजा है परवरदिगारा, वहाबियत को सफ़े हस्ती से मिटा दे। ए परवरदिगार, तुझसे बारहा इल्तिजा की है, अगर हमारी ये ज़ियारत हमारी उम्र की आखिरी ज़ियारत है, अगर ये ज़ियारत हमारी उम्र की आखिरी ज़ियारत है, किसके बाद जिंदगी हमें मोहलत न दे, तुझसे इल्तिजा है मेरे माबूद। ए परवरदिगारा, जब जब ये काफ़िले करबला के लिए निकले, हमारी रूहों को आजाद कर देना, ताकि हम भी इनके साथ ज़ाहिर हुसैन बन सके। परवरदिगार पालने वाले, ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, तुझसे इल्तिजा है, जिस तरह से तूने इन बारगाहों पे हमें गुंबद देखना नसीब किया है, परवरदिगार मौत से पहले जन्नतुल बकी पर भी गुंबद देखना नसीब कर दे। ये परवरदिगार हमारे जमाने के इमाम को हमसे राजी कर दे। माबूद मौला का ज़हूर हमारे लिए बाइस आफियत और रहमत करार दे दे। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ का है, मरीज, बीमार, अलील हमारे दरमियान, घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी है, परवरदिगार इस फर्श अज़ा के सदके में सबको जल्द अज जल्द शिफा आजिल इनायत कर दे। ये मेरे माबूद, जो कैद है उनको कैद से रिहाई नसीब कर दे। परवरदिगार पालने वाले जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें औलाद दी है, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, परवरदिगार उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। हे मेरे माबूद, हे मेरे माबूद, माना कि हम गुनहगार, माना कि हमने गुनाह किए हैं। रवायत है कि जब भी मासूम की बारगाह में जाया करो तो अपने गुनाहों को उनसे कहो कि हमने गुनाह किया है, मुझे मालूम है कि मैंने गुनाह किया है। उनके सामने गुनाहों का इकरार करो, उनसे दुआ करो, ए परवरदिगारा तुझे पता है कि हमने कितने गुनाह किए हैं। ए मेरे माबूद, खुद जैसे गुनहगार तो नहीं है हम, उतने गुनाह तो हमने नहीं किए हैं जब हुसैन हुर को माफ कर सकता है। ए परवरदिगारा, जब हुसैन हुर को माफ कर सकता है, ए हुसैन हम भी आपकी बारगाह में बैठे हुए हैं, हमारे लिए इल्तिजा करें। परवरदिगारा हमारे तमाम कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। माबूद परवरदिगार पालने वाले, आज शिया ने हैदर कर्रार पे दुनिया में जगह जगह जुल्म हो रहा है, लेबनान में, सीरिया में, बहरैन में, इराक में, हर जगह पर, जिनकी कोई खता नहीं, यही कि मुहिब्बे ज़हरा और मुहिब्बे अली हैं। ये परवरदिगार पालने वाले, शिया ने हैदर कर्रार दुनिया के जिस कंट्री में जहां कहीं भी जिंदगी कर रहे माबूद, सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू, नामूस की हिफाजत कर। प्यारे नबी की प्यारी नवासी, प्यारे नबी की प्यारी नवासी, शाम को कहती बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी, शाम को कहती
के चली है। प्यारे नबी की प्यारे नवासी शाम को कैदी बन के चली है। सब्र की मलका सहारा की प्यारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। देख रही है कोई तो आए शाना पकड़ कर ताज बिठाए। देख रही है कोई तो आए शाना पकड़ कर ताज बिठाए। चाहे हमारी चाहे सवारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। भाई भतीजे पांच बेटे सात वतन के आई थी लेकर। भाई भतीजे पांच बेटे सात वतन के आई थी लेकर। आए मुकद्दर आज अकेली शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। बेटों को सजदा बेटों को सदका भाई पे करके जिसने किए थे शुक्र का सजदा। छोड़ के तन्हा लाश को उसकी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। जिसके गनी से निकले न बाहर बल्बे में लाए उसको सितम पर। जिसके गली से निकली न बाहर अब ये लाए उसको सितम पर। ये गुरबात दे अली की शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। देख रही है कोई तो आए शाना पकड़ कर आज बिठाए। देख रही है कोई तो आए शाना पकड़ कर आज बिठाए। चाहे हमारी चाहे सवारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। ऐ करबला में तेरी याद दिल में रखता हूँ। जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। ऐ करबला में तेरी याद दिल में रखता हूँ। शब्बर की शना तो हो नहीं सकती थी लाश अपने सर की। उतारा घोड़े पर लश्कर की घटाया छाई है किस्मत पे कैसे मादर की। यतीम बच्चों की मादर सलाम करता हूँ। यतीम बच्चों की मादर सलाम करता हूँ। करबला में तेरी याद दिल में रखता हूँ। जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। करबला
सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ, जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। आई करबला में तेरी याद दिल में रखता हूँ। आई सदारन से जो चले सरवर, कभी तो गिर के उठे थाम कर वो अपनी कमर। कटा को शाम को सोया है शेर साहिल पर, यही वो हाथ थे जिसका तुम्हारा सांस पर। सहारा अब भी है अब्बास कदम भरता हूँ, सहारा अब भी है अब्बास कदम भरता हूँ। ऐ करबला में तेरी याद दिल में रखता हूँ, जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ, जो मिट सके न कभी दर्द दिल में रखता हूँ। ऐ करबला में तेरी याद दिल में रखता हूँ। या हुसैन, या हुसैन। वुल्द से फातिमा ज़हरा यही देती है दुआ, रंजो आलम से महफूज रहे अहले अज़ा। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। दागमातम के सजाने वालों, दागमातम के सजाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। ज़िक्र कुर्बान से वफा करने को, सुन्नते ज़ैनब मुस्ताफ़ा के अदा करने को, सुन्नते ज़ैनब मुस्ताफ़ा के अदा करने को। फश मजलिस का बिछाने वालों, फश मजलिस का बिछाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। तुमसे कहता से जली का परचम, नुसरते हमें पीछे न हटे कोई कदम, नुसरते हमें पीछे न हटे कोई कदम। ऐ वफादार करा वालों, ऐ वफादार करा वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। तुमसे कहता से जरी परचम, नुसरते हमें पीछे न हटे कोई कदम, नुसरते हमें पीछे न हटे कोई कदम। ऐ वफादार करा वालों, ऐ वफादार करा वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। उन सभी सदा परवर की याद में प्यासी सकी वाली असगर की, याद में प्यासी सकी वाली असगर की। पानी प्यासों को पिलाने वालों, पानी प्यासों को पिलाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। गम शबीर मनाने वालों, गम शबीर मनाने वालों, आओ ज़हरा की दुआ दो। हुसैन या मौला या मौला या मौला, हुसैन या
मौला या मौला हुसैन या मौला या मौला या मौला हुसैन या मौला या मौला या मौला हुसैन या मौला या मौला या मौला हुसैन या मौला या मौला या मौला अबा अब्दुल्लाह अबा अब्दुल्लाह अबा अब्दुल्लाह कतीबुल अबरार हुसैन या मौला हुसैन या मौला हुसैन या मौला हुसैन या मौला या मौला 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 या मौला ऐन हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ ऐना ऐना ऐन हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ ऐना ऐना ऐन हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ ऐना ऐना ऐन हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ मरकज़ को छोड़ा बेराग को आंखों से मेरी बहते हैं को मैं तुझ पे कुर्बान बेवतन मैं तुझ पे कुर्बान बेवतन तेरे बिना कैसे रहन पिछड़े हो बीमार वहाँ गुनाह मक्तल में तुझको ढूंढे कहा ऐना 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 हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ ऐना 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 हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ दिल पर तू लाशें उठाता रहा एक एक कदम ज़ख्म पाता रहा दिल पर तू लाशें उठाता रहा एक एक कदम ज़ख्म पाता रहा शहरोज़ की है तशना नबी शहरोज़ की है तशना नबी दरिया किनारे न पानी मिला के धरके में तकबीर करा परदेस में तुझ पे खच्चर चला ऐना 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 हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ ऐना 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 हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ कितनी मुरादों से पाला तुझे समझी थी घर का उजाला तुझे कितनी मुरादों से पाला तुझे समझी थी घर का उजाला तुझे आगों के चाले भी कहते हैं आज आगों के चाले भी कहते हैं आज पीसी है चक्की सा बाला तुझे साथी पर है लाशा तेरा हरकत में होता है नाना तेरा ऐना 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 हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ ऐना 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 हुसैन मक्तल में ज़हरा करती थी बैठ या हुसैन मौलाना या हुसैन मौलाना या हुसैन मौलाना या हुसैन मौलाना अल हुसैन मौलाना या हुसैन मौलाना सुन्नत आए के सितंबर के वास्ते या हुसैन मौलाना फुरात शाम के लश्कर के वास्ते या हुसैन मौलाना आप पुकार करती थी फरियाद या खुदा या हुसैन मौलाना या हुसैन धूप के अंदर में जल रहा या हुसैन